Hello everyone, welcome to next lecture on difference equation. In today's lecture we are going to solve the examples which is based on next type of PI. The previous lecture's link is given in the description box. Also you can click on the icon to refer the previous videos. So here the example is y lower suffix n plus 2 plus twice y n plus 1 plus y n equals to n square plus 1. Now in this case we have to convert this term into factorial form. So let's start to solve this question. Our first step to solve this type of question is we have to convert our difference equation in the form of E. So this difference equation in the form of E is E square plus twice E plus 1 into yn. Here it is n plus 2, so it is E square yn, and we are taking yn is common because in whole term we get common term is yn. Similarly here yn, so again yn is common, so remaining is twice E is equals to n square plus 1. So now this equation is in the form of phi of E into yn equals to n square plus 1. This is the highest order. This is a linear difference equation, and the solution of this equation is yn equals to CF plus PI. Now we have to one by one find the value of CF and PI. So first we find CF. To find CF we have to take auxiliary equation, and auxiliary equation that nothing but phi of E equals to 0. From this term we have to take function of E. Here function of E is E square plus 2E plus 1, and we have to take this term equals to 0. That is nothing but our auxiliary equation. So here E square plus 2E plus 1 equals to 0. It's a quadratic equation, that means we get two roots. So solve this term. It is a standard formula of E plus 1 bracket square equals to 0. Yes. So the roots are E equals to minus 1 comma minus 1. That means roots are real and equal. So we have to use case number 2 or to find CF. So by case 2 of CF, here CF equals to C1 first root raised to the power n plus C2 second root raised to the power n. But second root is repeated, so we have to multiply by n minus 1 raised to the power n. So this is our CF. Now our next task is we have to find PI. So take PI is equals to 1 upon function of E into f of n. That is the right hand side which is given in the question. So here put the value of function of phi of E. Here phi of E is E square plus twice E plus 1, and f of n is n square plus 1. Now to simplify this term we have to convert our E in the form of delta. And how to convert in the form of delta? Yes, we have to use the relation between E and delta, so that E equals to 1 plus delta. अगर आप लोगों को ये नहीं पता है कि E की वैल्यू डेल्टा के फॉर्म में किस तरह से आती है, तो आप लोग प्रीवियस लेक्चर देख सकते हो, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है. तो देखो अगर हम E के जगह पे 1 प्लस डेल्टा पुट करते हैं तो ये टर्म क्या हो जाएगी. हियर 1. Simplify this term. Here use a plus b bracket square formula, multiply by 2, then we get. और इसी नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 4 को अगर कॉमन निकालते हैं, इस टर्म में से 4 को कॉमन निकाल लीजिए, तो ये बनेगा आपका 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर बाय 4. सेम और ये 1 अपॉन 4 इज एज इट इज. इस टर्म को अगर न्यूमरेटर में शिफ्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर बाय 4 होल रेज़्ड टू द पावर माइनस 1 n square plus 1.
अब देखिए यही सेम टर्म है, सिर्फ लिखते वक्त क्या किया है, न्यूमरेटर में शिफ्ट किया है और जो टर्म डेल्टा के फॉर्म में उसको हमने क्या कर दिया है, एक ब्रैकेट में लिखा है। अब ये इस तरह से क्यों लिखा है, हमें फॉर्मूला पता है, कौन सा फॉर्मूला है हमारे पास में, वी नो दैट 1 + a⁻⁻1 इज इक्वल्स टू 1 - a + a² माइनस प्लस एंड सो ऑन। अब ये फॉर्मूला यूज़ करने के लिए आपको 1 प्लस समथिंग टर्म चाहिए, इसलिए इस टर्म को हमने 1 प्लस रिमेनिंग टर्म को ब्रैकेट में लिखा है। इसे इस टर्म के लिए अगर फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो ये टर्म क्या हो जाएगी हियर, 1/4 1 माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा स्क्वायर बाय 4 प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा स्क्वायर बाय 4 होल स्क्वायर माइनस एंड सो ऑन n² + 1। अब ये कंप्लीट ऑपरेटर अगर इस टर्म के ऊपर ऑपरेट होता है तो हम हर एक टर्म के लिए इन्फिनिटी तक के तो पॉसिबल नहीं है। अब इस टर्म की ही कैलकुलेशन को अवॉइड करने के लिए इस टर्म के जगह पे हम फैक्टोरियल नोटेशन का यूज़ करेंगे। फैक्टोरियल नोटेशन क्या करता है, अगर डेल्टा x⁻n फैक्टोरियल अगर है, फैक्टोरियल का हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया है, ये टर्म क्या है, फैक्टोरियल का नोटेशन है। किस तरह से फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है वो भी हमने लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है। लिंक अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा या फिर आइकॉन के ऊपर क्लिक कर दो, वहाँ पे भी लिंक मिल जाएगा, हाउ टू कन्वर्ट फैक्टोरियल। तो इस टर्म से क्या होता है, डेल्टा की डेफिनेशन आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन डायरेक्टली सॉल्व दिस टाइप ऑफ टर्म। हियर द फॉर्मूला इज n(x⁻n-1 फैक्टोरियल। तो इससे हमें डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट की जैसे यूज़ करते आएगा, बट उसके लिए ये टर्म फैक्टोरियल में कन्वर्ट होना चाहिए पॉलिनोमियल। अब हमारा पॉलिनोमियल n के फॉर्म में, तो इसी को हम फैक्टोरियल में कन्वर्ट करेंगे। तो हियर आवर पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ n इज n² + 1। तो ये n², फर्स्ट क्या करोगे, ये जो n² n फिर कांस्टेंट, इसके कोएफिशिएंट को लिखना है। तो n² का कोएफिशिएंट है 1, नेक्स्ट n का कोएफिशिएंट नहीं है तो 0, फिर कांस्टेंट का 1। देन हियर टेक 1 2 3 4 इस तरह से नंबर्स लेते हुए सॉल्व करना है। तो 1 से स्टार्ट करते हैं ऑलवेज। तो 1, ये फर्स्ट टर्म एज इट इज़, इस टर्म का प्रोडक्ट, तो 1 × 1 1, इस टर्म का एडिशन, तो यह आएगा 1। और लास्ट टर्म ये इसको ब्रैकेट करेंगे, तो यहाँ पे लास्ट टर्म है ये 1, तो इसको ब्रैकेट। अब इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे 2 लेना पड़ता है। तो फर्स्ट टर्म एज इट इज़, नेक्स्ट सॉल्व करने के लिए है ही नहीं, तो ये हो गया 1। अब ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इट्स अ कोएफिशिएंट ऑफ, हियर फर्स्ट टर्म कोएफिशिएंट ऑफ n⁻0 फैक्टोरियल, फिर ये आएगा n⁻1 फैक्टोरियल, कोएफिशिएंट ऑफ n⁻2 फैक्टोरियल। तो देयरफॉर यही एक्चुअल पॉलिनोमियल हम फैक्टोरियल नोटेशन में किस तरह से लिखेंगे। तो देयरफॉर हियर f = 1, हियर कोएफिशिएंट ऑफ 1 × n⁻2 फैक्टोरियल प्लस नेक्स्ट इज 1 × n⁻1 फैक्टोरियल प्लस n⁻0। तो n⁻0 डैट मीन्स ये होगा 1, सो इट इज़ n⁻2 फैक्टोरियल n⁻1 + 1। तो फंक्शन की वैल्यू फैक्टोरियल के फॉर्म में ये रहेगी और इस वैल्यू को हम क्वेश्चन में पुट करेंगे। तो इंस्टेड ऑफ दिस n² + 1 वी राइट दिस फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ फैक्टोरियल नोटेशन। तो हियर वी गेट, तो इस ब्रैकेट टर्म को सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा हमारा टर्म प्लस एंड सो ऑन। नाउ इस टर्म से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये रहेगा 1/4 एज इट इज़, 1 × दिस टर्म, तो 1 × टर्म इज n⁻2 फैक्टोरियल प्लस n⁻1 फैक्टोरियल प्लस 1 माइनस डेल्टा ऑपरेट करना है, ऑपरेट दिस डेल्टा ऑन दिस टर्म, तो देन वी गेट ट्वाइस n⁻1 फैक्टोरियल फॉर दिस टर्म प्लस डेल्टा इंटू n। तो ये आउटसाइड में माइनस है इसलिए यहाँ पे माइनस ही लिखेंगे, माइनस डेल्टा n⁻1 फैक्टोरियल इज 1, देन नेक्स्ट डेल्टा ऑपरेट ऑन दिस 1, देन 0, देन माइनस डेल्टा स्क्वायर बाय 4,
तो इसके ऊपर अगर ऑपरेट करते हैं तो इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, ये भी डेल्टा स्क्वायर है, ये भी डेल्टा स्क्वायर है, तो इसका अगर एडिशन कर लोगे तो इट इज़ 3/4 डेल्टा स्क्वायर। तो 3/4 डेल्टा स्क्वायर अगर ऑपरेट करोगे इस टर्म के लिए तो यहाँ पे हो जाएगा हियर प्लस 3/4 डेल्टा स्क्वायर ट्वाइस डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, तो ये रहेगा आपका 2। इस टर्म के लिए ऑपरेट करोगे तो हाईएस्ट डेरिवेटिव आ रहा है, पावर मैक्सिमम 1 है। सेकेंड टर्म में सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, सेकेंड के बाद में 0, फर्स्ट के बाद में 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे डेल्टा स्क्वायर की वैल्यू के लिए ये भी 0 आएगा, ये 0, तो ये पूरे नेक्स्ट वाले टर्म क्या हो जाएंगे 0। और नेक्स्ट में यहाँ पे क्यूब, फोर्थ पावर, फिफ्थ पावर इस तरह की टर्म कंटेन है, तो ऑब्वियसली उस होल टर्म के लिए ये फंक्शन क्या आ जाएगा 0। तो दिस टर्म, तो ये 1/4, अब हम फैक्टोरियल नोटेशन को हमारे ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जो हमारा टर्म था ये एक्चुअली क्या था, अगर इसका फैक्टोरियल नोटेशन सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारा एक्चुअली क्वेश्चन था जिसको हमने फैक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट किया है। दैट मीन्स ये टर्म इज़ नथिंग बट क्या है हमारा n² + 1। इस फैक्टोरियल नोटेशन, इसी टर्म को हमने फैक्टोरियल में इस फॉर्म में लिखा था। तो यही टर्म नथिंग बट n² + 1 - 2 n⁻1 फैक्टोरियल। ये अगर डेफिनेशन याद होगी तो वी नो दैट n⁻1 फैक्टोरियल इज n माइनस हियर कांस्टेंट टर्म इज -1, 3/4 × 2, तो ये 3/2 - 1। इफ वी सॉल्व दिस टर्म देन वी गेट pi is equals to 1/4. So here n² - 2n, 1 + 1/2 is 3/2. So therefore complete solution is yn equals to CF plus pi. Put the value of CF and pi. So here y, तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। Thank you. Like, share and subscribe.